Okay, let's start with the today's lecture. Uh, I'm going to share the screen. I think the screen is visible to everyone. Ankita, unmute yourself. अंकिता स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. चलो ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू. Okay, the first thing is before starting the today's lecture, the first thing is if someone having any issue, they can raise the hand in the chat box or you can send me the message on this group. Otherwise, वैसे मैं तुम लोगों को सभी को अनम्यूट पे रख रहा हूँ. Wait for a minute. Now you all are on the unmute channel. What it means, whenever you have any query, so simply you can unmute yourself और उस query को पूछ सकते हो जहाँ पे कुछ नहीं समझ आएगा. Clear? Let's start with the today's lecture. Okay, the first heading or the first topic in our system and the subject is the information system. What is information system? Information system refers to a collection of multiple pieces of equipment involved in a collection, processing, storage, and dissemination of information. Hardware, software, computer system connections, and information system users, and the systems housing are all the part of the information system. Personal computers, smartphones, database, and network are just some examples of the information system. Okay, so what is information system? Means information system hai kya? It is a collection of the information. Basically, it is a collection of both hardware and the software. Whenever we are storing some data, we are storing some information in some systems. These systems are known as the information system. The examples are like your personal computer. If you have a laptop, you can store all the notes in the laptop. This is a information system, a system who stores the information. Your smartphones, you all have your smartphones in which you have the different contact list, you have the different number of applications are there, and these number of applications having a number of numerous data along with these applications, and that data or the information is stored in your cell phones. So this is the example of the information systems. Next, enterprises and corporations use information system to interact with their suppliers and customer base, perform their operations, manage their organizations, and carry out their marketing campaigns. So means the different business, the different organizations, they are using the information system. They are using the information system to retrieve the information regarding their customers, regarding their clients, regarding their suppliers, and perform the different operations along with that information and manage their organization. The best example is suppose in your college, तुम सभी का डेटा हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है. इट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम. सपोज वी हैव अ मेन कंप्यूटर इन द मेन ऑफिस एंड इट होल्ड्स द डेटा ऑफ एमसीए सेकंड सेमेस्टर. उसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स के नेम्स, rule numbers, contact numbers, email IDs, and addresses. So what it means, whenever we want a email ID of any student, तो हमारे पास सिस्टम पे वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, हम लोग वहां से पिक करेंगे एंड वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन. So this is all about the information systems. Next, they can be used for a broad variety of purposes, for managing supply chains to interacting with the digital marketplaces. Individuals also rely on the information system to interact with peer and friends through social networks, carrying out everyday activities such as banking and shopping, or simple looking for the knowledge and information. What it means, whenever you have a system who holds the information, now it depends upon us. Whenever we want the particular information, we can fetch the information from that particular system. So these systems are known as the information systems. Basically, the nutshell is, the simple definition is, a system who holds the information, they are called the information systems.
and it is a combination of two things, software as well as the hardware. Software means the number of applications that you are using to store that information, and the hardware means the hardware components. Either you have a cell phone, you have a personal laptop, or you have a desktop. Clear? So this is all about the information system. Next. Now the next is the types of information systems. Now we all know what is the meaning of the information system. Now the second thing is we have the different types of information systems that are available in the market. Some of them are which can be used in our systems. They are, the first is executive support system, second decision support system, management information system, transaction processing system, and office automation system. दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इसके अलावा भी और भी डिफरेंट टाइप्स है, बट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उनमें से दे आर द डिफरेंट 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नाउ वी ऑल नो this is the diagram of the MIS. MIS means or management information system. What it means basically, whenever in any organizations, अब इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेना, उसी में ये सारा क्लियर हो जाएगा. Whenever we are working in our organizations, we have the different levels, the top level, middle level, and the bottom level. Where the top level is known as the managerial level, ये लिखा हुआ है राइट साइड पे, managerial level. The middle level is known as the tactical level. The third level, that is known as the operational level. Clear? And रिपीट कर रहा हूँ, टॉप लेवल जो मैनेजरियल लेवल है उस लेवल पे सीईओज होंगे या एमडीज होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के, ऑनर्स. मिडिल लेवल पे वी हैव द मैनेजर्स. मैनेजर्स कैन बी प्रेजेंट एट द मिडिल लेवल, and at the low level, that is named as the operational level, the employees, the number of employees who are working in the organizations, they are present at the low level. So ये पांच के पांच सिस्टम. अब डायग्राम के सेंटर पे देखो, at the managerial level means at the top level, ESS can be used, executive support system. And in the middle level where the managers are there, the two information systems are used. The first is DSS, that is called the decision support system, and second is the MIS, that is called management information system. And at the low level, whose name is the operational level, the two systems can be used over here. The first is TPS, that is called transaction processing system, and the second one is OAS, that is office automation system. क्लियर? और एक चीज तुम और देख रहे होगे, टॉप पे लिखा हुआ अनस्ट्रक्चर्ड एंड लास्ट पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एंड नीचे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. अब इनमें डिफरेंस भी बता देता हूँ, वैसे ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट डायग्राम दिस इज मेंशन्ड इन द डायग्राम, तो तुम लोगों को बता देता हूँ. अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस मींस दैट आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, दैट कैन बी अनसर्टेन, दैट कैन बी चेंज्ड. These processes can be held at the top level, and along with that at the low level the structure process are there. Because अभी हमने पढ़ा है कि लो लेवल पे कौन होते हैं, द रेगुलर एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड द स्ट्रक्चर प्रोसेसेस, उन एम्प्लॉइज को अपनी ड्यूटीज पता होती हैं, दैट सुबह हमने इतने बजे ऑफिस जाना है, हमने यही काम करना है, मेरी ड्यूटी ये है, मैं यही काम करूंगा, 5 बजे ऑफ होगा, उसके बाद हम लोग घर आ जाएंगे. दैट्स वाई द स्ट्रक्चर प्रोसेसेस आर available at the low level. But at the top level, the unstructure means uncertain processes. टॉप लेवल पे कौन होते हैं, सीईओज, द ऑनर्स, उनकी ड्यूटीज डिफाइंड नहीं होती. दैट्स व्हाई द अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस आर देयर. क्लियर? नाउ one by one we can define all the information systems. The first is executive support system. An ESS is the computer based information system that helps in decision making at the top level of organizations. This system is used at the top level of organizations, and we all know at the top level the owners, the MDs and CEOs of the organizations, they are present, and this system is using for taking the decisions. The decision taken with the help of ESS are non-routine decisions that affect the entire organizations, and the decisions that are taken at this level, they are the non-routine. Non-routine means तभी unstructured process था ना वहां पे. Non-routine means वो डिसीजन जो रूटीन में नहीं लिए जाते. फॉर एग्जाम्पल, आज कोई एम्प्लॉय नहीं आया तो क्या करना है, उसके वाला काम बाकियों में डिफाइन कर दो, वो रूटीन डिसीजन हो गया. कोई छुट्टी कर रहा है तो हम लोगों को पता है कोई एब्सेंट है
तो ये वाला काम मुझसे करवा लेंगे, अगर वो नहीं आया तो इसका काम किसी और को असाइन कर देंगे। दे आर द रूटीन डिसीजंस। बट ईएसएस से जो डिसीजन लिए जाते हैं दे आर द नॉन रूटीन। नॉन रूटीन डिसीजन मीन्स कोई नया प्रोडक्ट तुम लोगों ने लॉन्च करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे आर द नॉन रूटीन। वो रूटीन में कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते। सपोज वी आर वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोडक्ट एंड द डिसीजन टेकन अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट इज कि पहले इसकी मार्केटिंग करेंगे, देन नेक्स्ट मंथ हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। दिस टाइप ऑफ decisions are the non-routine decisions, and that can be taken by the CEOs and MDs and the owners of the organizations with the help of executive support system. Clear? Next, ESS use the advanced graphic software to display the critical information in the form of charts and graphs that helps the senior executives to solve a wide range of problems. Now, in the case of ESS, the graphics is there. The problem can be defined in the form of graphics, and they can take the decision depends upon these graphics. मतलब कोई भी problem है और कोई भी नया डिसीजन लेना है तो उसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफिकल व्यू में। ग्राफिकल व्यू में प्लॉट करने के बाद दे कैन इजीली टेक द डिसीजंस। Clear? To make effective decisions, ESS use summarized internal data from MIS, DSS, and external sources about the events like the new tax laws, the new competitors, etc. What it means to make the decisions effective, उन डिसीजंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए ईएसएस क्या करते हैं, जो मिडिल लेवल पे यूज हो रहा है एमआईएस और डीएसएस, उसकी समराइज्ड रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। Suppose you have the summarized report, now it's easy for you to take the decisions because summarized report already बनी होती है। summarized report में लिखा होता है कि इस मंथ में इस वाले प्रोडक्ट ने इस वाले प्रोडक्ट का, जस्ट वेट, ओके, समराइज रिपोर्ट का मतलब है सपोज वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें समराइज रिपोर्ट पे क्या होगा, जैसे ये मार्च मंथ था, फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के थे, एबीसी प्रोडक्ट इतना हमने सेल किया है, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है वो इतना सेल किया है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा सेल हुआ है वो वहाँ पे होगा, कौन सा कम सेल हुआ है, फिर उसके बाद जो ज़्यादा सेल हुआ है वो किस किस रीजन में सेल हुआ है, कौन कौन सी प्लेसेस पे वो प्रोडक्ट ज़्यादा गया है हमारा, और जो कम हुआ है वो कौन कौन सी प्लेसेस में कम हुआ है और कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ, मीन्स all the information related with our product. These are called the summarized report. And ESS use the summarized report that can be made by the MIS and DSS. And we all know MIS and DSS, they are used at the middle level. वो डायग्राम में हम लोगों ने अभी देखा था। Clear? Now the next. Executive supports. Just wait for a minute. Okay. Executive support system help to monitor performance, track activities of competitors, identify opportunities, and forecast trend in the market. ESS जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ESS support systems to monitor the performance. How we can monitor the performance? We can monitor the performance by showing कि जैसे तुम्हें अभी मैंने previous example में बताया, suppose we have the two products in our company, उन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेकार है, तो उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही है, उसकी सेल्स कैसी हो रही हैं, अगर ज़्यादा सेल्स हो रही हैं तो किस तरह हो रही हैं, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दीज प्रोडक्ट्स दे आर अवेलेबल इन द समराइज्ड रिपोर्ट्स। एंड द लास्ट इज फॉरकास्टिंग ट्रेंड इन द मार्केट। फॉरकास्टिंग ट्रेंड की एग्जांपल मींस जैसे अभी समर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनी है ना, उनकी एड्स तुम लोग ज़्यादा देखनी शुरू करोगे टीवी पे, आइसक्रीम की एड्स ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, क्यों? बिकॉज उनका ये जो सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये होता है फॉरकास्ट कर लेना पहले से कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को टाइमली लॉन्च कर दें। क्लियर? नेक्स्ट, ESS also assist senior managers in answering the following questions. Now ESS can also helps their senior managers, or the senior managers mean the CEOs, the MDs, and that are available in the organizations to help to opt out these type of answers. What are the different questions? What business should we do? हम लोग किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, ये मतलब ऑलरेडी वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी वी आर इन द बिजनेस, बट वी वांट टू एनहांस अवर बिजनेस, तो डिपेंड्स अपॉन अवर रिपोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कौन सा बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हैं।
हाउ आर अवर कॉम्पिटिटर्स डूइंग द बिजनेस, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो बिजनेस, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। थर्ड, विच यूनिट्स कैन बी सॉल्व एंड विच न्यू यूनिट्स आर टू बी बॉट, कौन से यूनिट्स हैं जहां पे, जैसे तुम्हें एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है तो उसमें फिर एनालिसिस करते हैं किस किस रीजन में वो ज्यादा बिक रहा है और किस रीजन में कम बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट है वो अमृतसर में ठीक बिक रहा है, बटाला में ठीक चल रहा है, गुरदासपुर में ठीक चल रहा है, पठानकोट पे रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा है उसके, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने साल के एनालिसिस के बाद वी कम इन टू द डिसीजन कि हम लोग पठानकोट वाला यूनिट अपना बंद कर रहे हैं, बिकॉज वो पिछले 1 साल से वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो लॉस में चल रहा है। तो इस तरह के डिसीजंस नए, हम लोग अपने यूनिट कहाँ पे खोल सकते हैं, पुराने वाले यूनिट कहाँ पे बंद कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन ईएसएस। और ये ईएसएस हेल्प करता है सीनियर मैनेजर्स को टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द ईएसएस, दैट इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। नाउ the next is decision support system. As the name implies, decision support system, it is a system who supports for taking the decisions, but this system can be used at the middle level. The difference is this: ESS used in the top level and DSS used in the middle level. Decision support system are used by senior management to make non-routine decisions. Decision support system use input from the internal systems and external systems. The main objective of the DSS is to provide the solutions to the problems that are unique and change frequently. Again, decision support system can be used at the middle level, and they are using for the taking the non-routine decisions. Same with the ESS, but the difference is the DSS is used in the middle level. If the DSS is used in the middle level, so what it means, they can be used by the managers, and ESS they also use for the non-routine decisions, but ESS used in the top level. So ESS used by the CEOs, MDs, and the owners of the organization. So this is the difference. DSS answer questions such as what would be the impact of employee performance if we double the production lot at the factory. अब ये डिफरेंस हुआ आप दोनों में, ESS और DSS में। DSS किस तरह की हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, what would the impact of employees performance, suppose we have the 100 employees in our organizations and we on the daily basis we make the 100 products. सपोज प्रोडक्ट हमारे अच्छे बिक रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अपनी प्रोडक्शन को हम लोग डबल कर देते हैं। सपोज राइट नाउ टुडे हम लोग अगर डिसीजन लेके चलते हैं, टुडे वी आर गोइंग फॉर द 200 प्रोडक्ट्स, तो 100 पहले हम लोग एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब 200 बनाएंगे, तो 200 बनाने में उतनी मैन पावर ज्यादा लगेगी, एम्प्लॉइज सेम है 100 ही है, तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन लॉट। क्लियर? सेकेंड, what would happen to our sales if a new competitor enter in the market? भाई हम लोग क्या है, हम लोग पेन बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो नई पेन वाली कंपनी अगर मार्केट में आ रही है तो हमारी कंपनी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा उसका, ये डिसीजन कहाँ पे होगा, डीएसएस पे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। बेसिकली दे डिपेंड्स अपॉन सम मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स मीन द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर, जो फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करते हैं, एंड स्टैटिकल टेक्निक्स, सम स्टैट्स आर आल्सो देयर। स्टैट्स मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अवर प्रोडक्ट, कि कौन कौन से प्रोडक्ट कितने बिक रहे थे, उनका स्टैटिकल व्यू बनाया, व्यू बनाने के बाद देखा वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा बिक रहे थे, तो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उन फैक्टर्स को पिक करके वहाँ पे अपनी जो सेल्स है उसको डबल कर सकते हैं। कैसे करना है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, और एक चीज़ और, ये जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग में तुम लोगों को मैंने बता दिया था, दे आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स अ सिस्टम हु हैव सम इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन होगी तभी तुम लोग कोई डिसीजन ले सकोगे। द सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास नोट्स होंगे किसी सब्जेक्ट के, तभी तुम लोग उन नोट्स को पढ़ के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कुछ लिख पाओगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हो ना, तो वो डिसीजन लेते हो तुम लोग कि सपोज क्वेश्चन आ गया डीएसएस, अगर तुम्हारे पास नोट्स थे, उन नोट्स को तुमने पढ़ा था, देन यू कम टू नो डीएसएस होता क्या है, तो मैं वो एग्जाम में लिखूंगा। क्लियर? सेम विद दीज सिस्टम्स, दे हैव द इंफॉर्मेशन, they all information system, they have acquired some type of information, and depends upon these informations they take the decision.
जैसे तुम लोग डिसीजन लेते हो ना, अगर सेशनल होने हैं तुम्हारे एक दिन में, अगर 2 सेशनल होने हैं, तो तुम लोग देखते हो सैटरडे संडे ऑफ है, सैटरडे को हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिसीजन टेकन बाय यू, कि हम लोग सैटरडे को ये काम कर लेंगे, संडे को ये काम करेंगे। सेम कैन हैपन इन दीज सिस्टम्स, द इंफॉर्मेशन इज देयर, depends upon this information they can take the decisions. Clear? Next, characteristics of DSS. Support for decision maker in semi structured and unstructured problems, and you all know what is unstructured. That is not structured. Structured means that is not in the particular format, they are non-routine. Support for managers at the various managerial level, ranging from top executive to the line managers. Support for individuals and groups. Less structured problems often require the involvement of the several individuals from different departments and organization levels. Either DSS can be used by the individual person or they can be used by the groups. Groups means the departments. And less structured problems where they are often require the involvement of the different individuals from the different departments, because less structured का मतलब है, structured का मतलब होगा formed in a pre-defined manner. हम लोगों को पता है ये, जैसे तुम्हें अभी मैंने पहले बताया, ये प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई छुट्टी पे चला गया है तो हम लोग उसका काम किसी और को दे देंगे। तो ये आर द रूटीन प्रॉब्लम्स थी, वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी। बट लेस स्ट्रक्चर्ड जो नॉन रूटीन है, उनके लिए वी हैव टू टेक द डिसीजंस, द प्रॉब्लम इज न्यू एंड सोल्यूशन इज ऑल्सो न्यू। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो एनालिसिस करते हैं, देन दे गिव देयर सजेशंस एंड डिपेंड्स अपॉन दीज सजेशंस वी कैन टेक द डिसीजंस। क्लियर? Support for interdependent or sequential decisions. Interdependent means that depends upon each other, and sequential decision means the decisions that can be taken in the sequence. अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा होगा, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। दे आर द सीक्वेंस डिसीजंस। जैसे तुम लोग क्लासेस लगा रहे थे कॉलेज में, जैसे अगर कोई टीचर नहीं आया तो हम लोग क्या करते उसकी एडजस्टमेंट लगा देते थे। अगर टीचर ने अपने वाला लेक्चर किसी और की जगह ले लिया तो उसका लेक्चर बाद में लंच के बाद हम लोग फ्री कर देंगे और तुम्हें लंच के बाद छुट्टी कर देंगे। तो ये सीक्वेंशियल डिसीजंस हो गए। एक टीचर नहीं है, दूसरे का लेक्चर लास्ट से उठा के आगे लगा दिया और लंच टाइम के बाद तुम लोगों को छुट्टी कर दी। क्लियर? नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सपोर्ट फॉर इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये बेसिकली मॉडल को बनाने की स्ट्रेटेजी होती है। समझा देता हूँ। द फर्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज तुम लोगों को प्रोग्राम दे दिया C++ में, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए दिया, तुम लोग पहले क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, इस प्रोग्राम को C++ में बनाने के लिए मेरे को फोर लूप लगेगी या डू वाइल लगेगी, मैं फोर लूप लगा लूंगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं। दिस फेज इज नोन एज द इंटेलिजेंस फेज। देन डिजाइन। डिजाइन पे क्या है, फिर तुम लोग उसका डिजाइन बनाते हो, मन में सोचते हो कि अगर फोर लूप से करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, डू वाइल से करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं तो ऐसे बन जाएगा। दिस इज द डिजाइन फेज। नेक्स्ट, चॉइस। नाउ डिपेंड्स अपॉन यू, तुमने सोचा नहीं फोर लूप वाला बेस्ट है, हम लोग फोर लूप वाले को पिक करेंगे, वो होगा चॉइस फेज। एंड लास्ट, इंप्लीमेंटेशन। फिर जिसको तुम लोग पिक करते हो तुम लोग उसको इंप्लीमेंट कर देते हो और वो प्रोग्राम को C++ में बना के टीचर को प्रेजेंट कर देते हो। तो ये सभी में हेल्पफुल कौन करता है, DSS, दैट इज कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। Clear? Support for variety of decision processes and styles. It supports the different variety of decision processes. Decision processes means the decisions that are related with different processes. And we all know what is process. Whenever any activity is done, this is called a process. Any problem that arise with any process, they can be solved by the decision process. Means someone has to take the decision on that process and solve the problem. So this is called the decision process and styles. Clear? Next, MIS. MIS is Management Information System. A system who manages the information. Management Information System are used by tactical managers. Tactical कौन से थे? If you remember, the low level, middle level, transaction level, to monitor the organization's current performance status. The output from a transaction processing system is used as the input to the management information system. Transaction system means a day-to-day activities जो lower level पे थी, डे टू डे एक्टिविटीज जितना भी काम करेंगी, जितना भी काम होगा, उसकी आउटपुट दैट बिकम्स द इनपुट फॉर द MIS.
MIS is a planned system of collecting, storing, and broadcasting data in the form of information needed to carry out the functions of management. What it means, MIS basically is a collection of information, and we can manage the information in MIS. Whenever a word manage is there, we can manage the information. What it means, हम लोग information को manage कर रहे हैं, and in manage we can add, delete, update, retrieve the information. This is called the manage the information. So these all activities can be performed in the MIS, in management information system. Next, the TPS, that is called transaction processing system. Just wait for a minute. Okay, the next is transaction processing system. And we all know transaction processing system is used at the lower level. Transaction processing system are used to record day-to-day business transaction of the organization or day-to-day activities. They are used by the users at the operational management level. The main objective of the transaction processing system is to answer the routine questions. Now, which questions? The routine questions. And what are the routine questions? How printers were sold today? How much inventory do we have at the hand? What is the outstanding due to the John due? What it means, जो डेली बेसिस एक्टिविटीज होंगी उन पे जो डिसीजन लेंगे वो डेली बेसिस एक्टिविटीज क्या होंगी कि आज कोई एब्सेंट है तो उसके वाला काम हम लोग को बाकियों को कैसे करेंगे. सपोज वी हैव द 10 प्रिंटर्स, वी हैव द प्रिंटिंग मटेरियल ओवर देयर, उनमें से 2 प्रिंटर नहीं चल रहे तो क्या करना है. ये रूटीन एक्टिविटीज हैं. कभी कोई प्रिंटर खराब होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, कभी कोई एम्प्लॉय आज छुट्टी पे है तो उसको क्या करेंगे, उसकी जगह किसी और ले जाएंगे. अब हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, हमारे पास इतने बने, ऑर्डर कितने का लगा है, इतने का लगा हुआ है, चलो और इतने प्रोडक्ट बना के उसको भेज दो. दीज क्वेश्चंस आर द रूटीन क्वेश्चंस जो नॉर्मली आते ही आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर. सो these type of questions they can be answered by the transaction processing system. By recording the day-to-day business transactions, TPS system provides answers to the above questions in a timely manner. The decisions made by the operational managers are routine and highly structured. Routine जो routine में आने and highly structured. Highly structured का मतलब है pre-defined है, structured form में, defined form में है. ये होगा तो क्या करेंगे, ये करेंगे. और second thing, ये वो questions होते हैं या वो problems होती हैं जिनके solutions हमारे पास होते हैं. सपोज ये प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ ये आई है तो हम लोग इसको ऐसे ओवरकम करेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई है तो उसको ऐसे करेंगे. मींस दीज आर दैट क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन हमारे पास पहले से होता है. दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और द रूटीन क्वेश्चंस. क्लियर. The information produced from the transaction processing system is very detailed. Why the information is detailed? Because this information depends upon the day-to-day activities. That's why this information is in the detail form. कि suppose if any activity is over there, कितने बजे एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, कितना टाइम लगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, कितने बजे वो एंड हुआ और आउटपुट उसकी क्या निकली. दिस इज कॉल्ड द डिटेल इन्फॉर्मेशन. अदरवाइज अगर हम लोग बोल दें ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई और ऐसा हुआ तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ही होगी. कब एक्टिविटी स्टार्ट हुई, कितने टाइम के लिए यूज किया गया, कब वो एक्टिविटी बंद हुई, क्या उसकी आउटपुट आई. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. क्लियर. Next, every firm needs to process transactions in order to perform their daily business operations. We all know, ये तो सिंपल सा है ना कि every firm, हर organization needs to process transactions in order to perform their daily business operations. और whenever a target is set, अब समझना, टॉप लेवल था, मिडिल लेवल था, लो लेवल था. टॉप लेवल पे सीईओज थे जिन्होंने टारगेट या डिसीजन ले लिया कि इस साल हम लोग अपनी प्रोडक्शन डबल करेंगे तो सेल भी डबल होगा. क्लियर. अब वो डिसीजन चला जाता है मिडिल लेवल को. मिडिल लेवल नाउ दे मेक द स्ट्रेटजीज दैट हाउ वी कैन अचीव दिस टारगेट. वो टारगेट हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स कर लेते हैं कि क्वार्टरली बना दिया, एक महीने में
एक साल में 12 महीने होते हैं, वी ऑल नो। क्वार्टरली का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ्स, 3 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स बना दिए उन्होंने कि हम लोग पहले क्वार्टर में इतनी सेल्स अचीव करेंगे, सेकंड में इतनी करेंगे, थर्ड में इतनी करेंगे, फोर्थ में ऑटोमेटिकली इतनी हो जाएगी। अब वो क्वार्टर सेल को अचीव करने के लिए दे रिक्वायर्ड द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, because suppose a month is consist of the 30 days, a one quarter is of 90 days for example। तो भाई 90 डेज की टारगेट को अचीव करने के लिए दे डिपेंड्स अपॉन द डेली बेसिस टारगेट। आज कितना टारगेट अचीव किया, कल कितना किया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। तो दीज कैन बी परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आपस में इंटरलिंक्ड ही होते हैं, बट टॉप लेवल पे लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं, हम लोग ये अचीव करेंगे। मिडिल लेवल पे उस चीज को कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या मेथड्स अपनाएंगे, वो मिडिल लेवल पे क्या मेथड अपनाया, क्वार्टरली डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने सोचा था कि हम लोगों ने 1200 प्रोडक्ट बनाने हैं इस साल अपने, क्वार्टरली में हमने डिफाइन कर दिया कि भाई 1200 का अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे 300 प्रोडक्ट बन रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के। और जब क्वार्टर को मंथ्स में डेज में डिवाइड किया तो 90 डेज में हम लोगों ने 300 प्रोडक्ट बनाने हैं ऑन एन एवरेज 3.5 पर डे। तो हम लोग डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट कर देते हैं कि डेली बेसिस पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो डेली बेसिस कहाँ पे काउंट होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे। क्लियर। In a manufacturing unit, transaction includes order entry, receipt of goods, shipping, etc. While in a bank, transaction include deposit and withdrawals, cashing of checks, etc. ये एग्जांपल है कि टीपीएस की एग्जांपल क्या, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, जैसे तुम लोग बैंक में गए, वहां पे कुछ डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट करवा के वापस आ गए, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। अपनी बैंक की कॉपी को अपडेट करते हो, वहां पे ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। एटीएम तुम लोग यूज करते हो, मिनी स्टेटमेंट वहां से निकलवाते हो, इट होल्ड्स द प्रीवियस 10 ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आ गई 10, कौन सी, कब पैसे विड्रॉल करवाए थे, कब सबमिट करवाए थे, अब डिपॉजिट हुए हैं, विड्रॉल हुए, वो पिछली 10 ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, अ सिंगल एंटिटी। To support the processing of business transactions, the transaction processing system are used in the organization at the lower level of the management, and we all know, तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया, ट्रांजैक्शन में लोअर लेवल पे यूज होगा। लोअर लेवल पे डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, डे टू डे एक्टिविटीज से क्वार्टर एक्टिविटीज बनती हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनता है जो मिडिल लेवल पे यूज होता है। उन शॉर्ट टर्म प्लान्स को कंबाइन करके लॉन्ग टर्म प्लान बनता है जो टॉप लेवल पे बना था, जिसको हम लोगों ने अचीव करना होता है। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द TPS. ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। ये जो ट्रांजैक्शंस है, डेटा कैप्चरिंग, दे कैप्चर द डेटा, प्रोसेस द डेटा, एंड दैट प्रोसेस डेटा इज given to the manager in the form of report. We present the reports to the managers. Last में updating, updating means suppose the report is there and someone updates some data, तो transactions हो गई, they make some transactions, they make some transaction in the previous data, the data is updated and the updated report is given to the manager। कोई भी डायग्राम बना सकते हो तुम, that depends upon you। Clear। The next and the last one is office automation system. This is a simple one. Office automation system means when we convert the manual data into the digital data। Clear। Right now जैसे digital data means whenever we are converting our files into the word files। जैसे पहले क्या था, हम लोग जितना तुम लोगों ने पहले देखा होगा कि बैंक में पहले एंट्रीज कैसे पड़ती थी, मैनुअल एंट्रीज पड़ती थी। तुम लोग विड्रॉ करवाते थे अपने अकाउंट से कुछ भी, मैनुअल एंट्री पड़ती थी, तो रिकॉर्ड मैनुअल होता था। एंड ऑफ द डे वो रिकॉर्ड मैच करते थे कि बैंक से इतनी अमाउंट, बैंक में इतनी अमाउंट आज डिपॉजिट हुई है, इतनी विड्रॉ हुई है, तो एंड में वो कैलकुलेट करते थे इतने पैसे बैंक में होने चाहिए। क्लियर। बट राइट नाउ ऑटोमेशन इज देयर। ऑटोमेशन मींस द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर। तुम लोग जाते हो बैंक में, दे कैन सिंपली क्लिक ऑन योर अकाउंट, वहां से विड्रॉल करते हैं, वो फिल करते हैं, वैल्यू ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। Clear। And office automation system is a collection of communication technology, computers and person to perform the office task. It executes office transaction and supports official activities at the operational level. These activities can be divided into the clerical and managerial activities। दो तरह की activities हो सकती हैं, clerical and managerial, but with the help of computer system। Clerical activities performed with the help of office automation system including preparing written communication, typesetting, printing, mailing, scheduling meetings, calendar keeping, etc। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है,
राइट करना है, कोई टाइपिंग करनी है, कोई प्रिंट निकालने हैं, कोई मेल करनी है, कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, ये सारी क्लरिकल एक्टिविटीज हैं दैट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर द concept of clerical activities. Second one is managerial activities. Managerial activities like office automation system helps in conference, creating reports, messages, controlling the performance of organization. Managerial activities क्या क्या आ जाएंगी? कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो कैसे मैनेज करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है तो किस तरह बनेंगी, कोई परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, मतलब परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है मतलब उसको चार्ट आउट कैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सारी होगी मैनेजरियल एक्टिविटीज। क्लियर? मैनी एप्लीकेशंस लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, वॉइस मेल आर इंटीग्रेटेड इन द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। These are the examples of office automation system. Word processing means number of वर्ड फाइल्स आर देयर। जैसे ये पीपीटी चल रही है अब हमारी, ये क्या चल रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन ही है। हम लोग किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं। अभी ये प्रेजेंटेशन है। जब पहले पीपीटी या एमएस ऑफिस नहीं होता था तो पहले हम लोग स्कूल्स में भी पढ़े हैं, वहां पे क्या है, टीचर बोलते थे, हम लोग वो लिख लेते थे अपनी कॉपीज पे, फिर वो समझाते थे, हम लोग उनको समझ लेते थे, कॉपीज बनती थी ना स्कूल लेवल पे। अब क्या है, कोई रिटर्न वर्क नहीं है, ओनली द पीपीटीज आर देयर। पीपीटी चलती है स्क्रीन पे, टीचर समझाता है, हम लोग समझ लेते हैं, लिखने वाला टाइम सेव हो जाता है। और इन नोट्स को ना तो लिखना पड़ता है ना संभालना पड़ता है। पहले कॉपीज को मैनेज करना पड़ता था, कॉपी गुम हो गई, सारे नोट्स खत्म हो गए। अब ये ऑनलाइन अवेलेबल है सारे नोट्स, तुम्हें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर दोगे, तुम्हारे पास नोट्स आ जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर? वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक, वर्ड प्रोसेसिंग तुम्हें अभी बता दिया किस लिए यूज होता है, फॉर प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, मेमोज और एनी टाइप ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वो कोई भी रिपोर्ट बनानी है, तुम लोगों ने रिज्यूम बनाना है, वर्ड पे जाते हो, अपना रिज्यूम बनाते हो, उसका प्रिंट निकालते हो और दे आते हो। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो हम लोग पेन लेके कॉपी पे वो बनाते, लिखते एंड फिर उसको दे के आते। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक मेल पे क्या है, सिंपली हम लोग एक दूसरे को मेल्स कर देते हैं, कोई भी डेटा तुम लोगों को या कोई भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वो मेल आईडी पे जाते हैं, नोट्स को अटैच करते हैं और ईमेल सेंड कर देते हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले क्या था, वो पेपर्स की फॉर्म में जाता था जो कॉपी है, अब पेपरलेस काम है। सेकंड, द थर्ड इज वॉइस मेल। वॉइस मेल एन इंपॉर्टेंट कॉल सर्विस, वो सारे तुम लोग यूज करते ही हो। टेलीफोन्स तो चलो पहले यूज होते थे, व्हाट्सअप कॉल करते हो तुम लोग, है ना, एंड उसका चार्जेस भी जीरो है। अब वो क्या है, वो ऑफिस ऑटोमेशन ही है। जैसे जैसे ऑटोमेशन हुई तो वी हैव द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। वॉइस मेल के थ्रू हम लोग इजीली आपस में बात कर सकते हैं। राइट नाउ जैसे जूम के थ्रू अब हमारी क्लास चल रही है, तो तुम लोग अपने अपने घरों पे बैठे हो, हम लोग कॉलेज है, बट स्टिल द क्लास इज गोइंग ऑन। दिस इज ऑल अबाउट द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। क्लियर? नाउ द लास्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ, आई थिंक दिस इज नेक्स्ट। ओके, now this is all about the information system and the types of information system. Any query? इतना जितना भी अब तक किया है, तुमको मैंने अनम्यूट मोड पे रखा हुआ है, स्टार्टिंग में बोल दिया था, इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और बता सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी। एनी क्वेरी टिल व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ और पूछ सकते हो। इफ अगर नहीं होगा कुछ देन वी गो फर्दर। ओके, I received the messages. Okay. Okay. Now the next. The topic is done. What is information system? Different types of information system. Now the next is the components of information system. Components का मतलब we all know what is the meaning of components. Means the different parts जिनको combine करके एक information system बनता है. Let's start with this. The first, computer software. The software means the number of application softwares जो हम लोग यूज करेंगे. Second, computer hardware. Hardware that is used in that. Third, human resource, the users who make the changes in that reports. Fourth, database. कोई कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं या जहां पे डेटाबेस बना रहे हैं. फिफ्थ, द नेटवर्क्स, जिस नेटवर्क को यूज करके हम लोग बाद में उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे या एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. दे आर द कंपोनेंट्स. नाउ look at the simple example. Suppose we have a laptop, we have a syllabus and we have notes of all the subjects in our laptop. So automatically we can say our laptop is an information system because सारी information यहाँ पे पड़ी हुई है MCA second semester की.
तो जब भी एग्जाम आएंगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और एग्जाम्स दे देंगे। फर्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या, मेरे पास वर्ड होना चाहिए और पीपीटी होनी चाहिए। वो सॉफ्टवेयर हो गए ना, एमएस ऑफिस होना चाहिए। कुछ नोट्स मेरे पास पीपीटीज में पड़े हैं प्रेजेंटेशन मोड में, कुछ ऑफिस में पड़े हैं पीडी उसमें ऑफिस फाइल में, डॉक फाइल में, और कुछ पीडीएफ पड़े हुए हैं। तो दे आर कॉल्ड, ये हो गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लियर। सेकंड, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर मींस जो लैपटॉप हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर हार्डवेयर। थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मींस द यूजर्स। हम लोग टाइमली जब अपने नोट्स को अपडेट करते हैं, फिर उनको कहाँ पे जाके सेव करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन मी। नॉर्मली हम लोग ऐसे सेव करते हैं ना, किसी भी ड्राइव पे जाके वहां पे फोल्डर बना लोगे, एमसीए सेकंड सेमेस्टर, उस पर डबल क्लिक करोगे, आगे फोल्डर बना होगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बना होगा। उससे क्या, मेरे को पता होगा कि मेरे सारा सिलेबस या मेरे सारे नोट्स एमसीए सेकंड सेमेस्टर के इस फोल्डर में पड़े हुए हैं। बट वो कौन चेंजेस करेगा, कौन उनको अपडेट करेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स मींस द यूजर्स, जो उनको यूज कर सकेंगे। ये सिंगल की एग्जांपल ले रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड बाय द मल्टीपल यूजर्स। फोर्थ, डेटाबेस। डेटाबेस मींस नाउ इट बिकम अ डेटाबेस। द ड्राइव जहां पे तुम लोग वो सारा फोल्डर को सेव करोगे, दैट विल बिकम अ डेटाबेस। और डेटाबेस की सिंपल एग्जांपल क्या होती है, जहां पे हम लोग डेटा को सेव करते हैं। तो हमने डेटा को कहां पे सेव किया, अपने लैपटॉप में, अ पर्टिकुलर ड्राइव इज देयर, दिस इज कॉल्ड द डेटाबेस। एंड द लास्ट, द नेटवर्क। नेटवर्क मींस जिस नेटवर्क को यूज करके वी कैन सेंड दैट नोट्स टू समवन एल्स, एंड वी कैन रिसीव द नोट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, एंड we can send or receive the same material along with the help of some network, and this is called a network part, कि कौन सा नेटवर्क हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एज फॉलो। द फर्स्ट वन इज द कंप्यूटर हार्डवेयर, वैसे समझा दिया फिर भी कर लेते हैं। फिजिकल इक्विपमेंट यूज फॉर द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। what hardware to use, it depends upon the type and size of the organization. It consists of input and output devices, the operating systems, the processors, and the media devices. This also includes the computer peripheral devices. Hardware means anything that is available in the hardware form. The number of systems, the number of printers, number of fax machines, number of processors, number of media devices, the keyboards, the mouse, जितना भी hardware material use करेंगे, that come under the category of computer hardware. Second, computer software. The programs or application programs used to control and coordinate the hardware components. It is used for analyzing and processing of the data. These programs include a set of instructions used for the processing information. Software means किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर विद that we can use in our system, and सॉफ्टवेयर मैनेजेस द हार्डवेयर। ये सबने पढ़ा होगा, है ना, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। वो सॉफ्टवेयर ही मैनेज करते हैं हार्डवेयर को। एंड these processing systems include a set of instructions for the processing information. Further, the software is classified into the three types or three categories. System software. We all know system software is equal to the operating system. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी लैपटॉप स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वी कैन स्टोर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, दे आर कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चाहे वो एमएस ऑफिस है, एमएस पेंट है, या कोई भी तुम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, बट दैट एप्लीकेशन इज कंपेटेबल विद द योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम विद योर सेल फोन्स, किसी के पास iOS आईफोन होंगे, कईयों के पास एंड्रॉयड होंगे। अब एंड्रॉयड वाले में हम लोग वही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जो एंड्रॉयड कंपेटेबल है। iOS एंड्रॉयड उसे प्ले स्टोर iOS में नहीं चलेगा, आईफोन में नहीं चलता, सबको पता है। उनका अपना स्टोर है, वहां से डाउनलोड करते हैं, बिकॉज दैट इज कॉल्ड द कंपेटेबिलिटी। बट कंपेटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेटेबल कौन सी दूसरी चीजें हैं। क्लियर। थर्ड वन इज द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मींस द नॉर्मल रूटीन फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द हार्डवेयर, बट दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। द नॉर्मल ऑपरेशंस और द नॉर्मल प्रोसीजर्स जो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड, database. Data are the raw fact and figure that are unorganized, that are and later processed to generate information. Softwares are used for organizing and serving data to the users, managing physical storage of media and virtual resources. As the hardware can't work without software, the same as the software needs data for processing. Data are managed and using database management systems. Database software is used for efficient access for required data and to manage the knowledge bases. Database means where the data is available.
Whenever we have the multiple data and we can store that data into the particular form, it will become the database. The best example is DBMS, database management system. अब DBMS तुम लोग पढ़ रहे होगे या तुम लोग पहले पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हो, you create the tables, you give the entries, and after that you fetch the data. Select star from EMP where salary is equal to this. इस तरह की तुम लोग चलाते हो इक्वेशंस. वो क्या करते हो, वो हम लोग डेटा को फेच करते हैं. डेटा कहाँ से फेच करेंगे, अगर डेटा अवेलेबल होगा तो. और डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, इन द डेटाबेस. क्लियर. जैसे तुम्हें अभी मैंने एग्जांपल बताई थी कि यू कैन स्टोर ऑल द नोट्स ऑफ एमसी सेकंड इन योर लैपटॉप. वहां पे एक ड्राइव बना लेते हो, वहां पे नेटवर्क, वहां पे जाके अपना वो नोट्स सेव करती है. अब मैं, तुम्हारा फ्रेंड या कोई तुमसे पूछता है क्लासमेट कि भाई मेरे को उस चैप्टर के नोट्स देना, तो तुम लोग क्या करते हो, यू नो where your data is reside in the particular drive, where in the particular folder, and you pick the particular file. This is called the database. वहां पे डेटाबेस पे डेटा पड़ा हुआ है, तो वी इजिली रिट्रीव द डेटा, वी अपडेट द डेटा, वी डिलीट द डेटा. क्लियर. लास्ट, network. Networks resources refer to the telecommunication network like the intranet, extranet, or the internet. These resources facilitate the flow of information in the organization. Network consists of both the physical devices such as the network cards, router, hub, cable, and software such as operating system, web server, data servers, and application servers. नेटवर्क कहता वो होगा जिसके थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे. राइट नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू जूम क्लास चल रही है, जूम क्लास के थ्रू वी कैन अटेंड अवर क्लास. तो कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है, इंटरनेट. वेन एवर वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेट इज देयर. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क कि हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं. एंड दैट नेटवर्क ऑल्सो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two things, the hardware devices and the software devices. Hardware devices, you all know what are the networking equipments, the network cards, routers, hubs, cables, switches. They are the networking equipment. And along with the softwares, software kaun se, the operating system that is available in your laptops, the web servers, जो वेब सर्वर्स होंगे, डेटा सर्वर्स, फ्रॉम द डेटा कैन बी फेच, द एप्लीकेशन सर्वर्स, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर प्रेजेंट ओवर देयर. So network is also a combination of hardware and software. Clear. Next, telecommunication network consists of computers, communication processors, and other devices interconnected by the communication media and controlled by the software. Network include communication media and network support. किताब telecommunication किस चीज को consist करता है, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स को. सपोज तुम लोगों ने क्लास लगाई हुई है थ्रू आइदर थ्रू लैपटॉप or through your cell phones, then you require the two things. The first, the hardware is laptop or your cell phone, and the software means the operating system that is available in your system. तो तुम सभी ने फोन पे क्या किया होगा, पहले जूम डाउनलोड की होगी. जूम डाउनलोड करने के बाद तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा. इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वो इंटरनेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो किसको कंपेटेबल बना रहा है, तुम्हारे हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए. एंड हार्डवेयर इज आवर सेल फोन्स. Clear. Basically it is a combination of both the things, hardware sorry, hardware and software. Last one is HR, the human resources. It is associated with the manpower required to run and manage the system. वो तुम लोग को बता दिया कि एग्जांपल अपने लैपटॉप तो हम लोग चलाते हैं. The number of systems that are available in the organizations that can be managed by the number of persons. कितने ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, नंबर ऑफ सिस्टम है, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे डिपार्टमेंट के जो सिस्टम को यूज करते हैं. तो वो सारा क्या हो गया, द HR, द ह्यूमन रिसोर्स. पीपल आर द एंड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड यूजर यूज इंफॉर्मेशन produced for their own purpose. The main purpose of the information system is to benefit the end user. The end user can be accountants, engineers, salespersons, customers, clerks, or managers, etc. People are also responsible to develop and operate information systems. They include system and analytics, computer operators, programmers, and other clerical information system personals, and managerial techniques. So what it means at the nutshell, what is the meaning of HR? Human resources, where the number of manpower is used, number of manpower is required to run and manage the system. For example, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग सारे. सपोज अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, कोई भी एग्जांपल ले लो. अब फ्लिपकार्ट ले लो. अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को मैनेज करने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए होगी,
कितने प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, वो कहाँ पे लगाने हैं, कौन सी कैटेगरीज बनानी है। तुमने देखा होगा वहां पे कैसे कैटेगरीज बनी होती है। अब उनको मैनेज कौन कर रहा है? द यूजर्स, जो बैक एंड यूजर्स होंगे, जो उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बन गए? दे आर द बैक एंड यूजर्स। तो वो मेंटेन किसको कर रहे हैं? हमारे वाले सॉफ्टवेयर को। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द एचआर। नेक्स्ट। Okay, this is all about the components. If any problem, just unmute yourself and uh, we can discuss that problem. If any query over there in components of information system, you can unmute yourself. अगर किसी को कोई भी issue है, any issue in any topic, you can simply unmute yourself और हम लोग उसको discuss कर सकते हैं. Then we go for the next slide. Okay. Okay, no problem is over there. Okay, then we move to the next slide. Okay, the next second topic is over. The first topic is information system, and then the different types of information system, and then the components of the information system. Now, the next concept is computer security concept. Computer security concept, which includes the three things: CIA. This is important. CIA means C stands for confidentiality, I for integrity, A for availability. Clear? Let's start with this. Organizations and peoples that use computers can describe their needs for information security and trust in the systems in terms of three major requirements. They required three major things, and these three things come under the category of computer security concept. Okay, the first is confidentiality, means controlling who gets to read information. To control the thing or to control the activity that a required person is able to receive that particular information. This is called confidentiality. What it means, जैसे वो तुम लोगों ने कई फाइल्स देखा उन पे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, मूवीज वगैरह में देखा होगा तुमने, है ना, आर्मी की फाइल्स होती है उस पे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, और वो फाइल उसी को दी जाती है जिसके लिए वो फाइल बनी हो. व्हाट इट मींस, जिसको वो पर्टिकुलर मैसेज देना है या जिसको इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करनी है वो उसी बंदे को जाके मिले. दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी. द डेटा और द इंफॉर्मेशन दैट आर होल्ड बाय दिस पर्टिकुलर फाइल दैट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल फॉर अदर पर्संस. किसको? जिसको चाहिए उसी को जाके मिले. क्लियर? सेकंड, इंटेग्रिटी, assuring that information and the programs are changed only in a specified and authorized manner. Integrity means the integrity of the information remains the same. No tampering can be held with that particular data. जिस फॉर्म में मैंने इंफॉर्मेशन तुम लोग को सेंड की उसी फॉर्म में तुम लोग इंफॉर्मेशन रिसीव करो. व्हाट इट मींस, उसी फॉर्म में उसी फॉर्मेट में, विदाउट टेम्पर्ड, विदाउट मॉडिफाइड. दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी. Third, availability, assuring that authorized users have continued access to the information and resources. What it means, at any time, the authorized users, the information is available 24 by 7 for the authorized users. If we are the authorized user at any time, if we want to fetch some data from the databases, that information is available for us. This is called the availability. Clear? Any issue? इन तीनों में से कुछ नहीं समझ आया तो बताओ. Wait. Okay, availability. Availability means the information is available for the authorized user. Suppose
वी आर द ऑथराइज्ड यूजर, ऑथराइज्ड का मतलब है वी आर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड whenever we want or whenever we want to retrieve the information is all time available for us. जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू टेक द डिसीजंस, डिपेंड्स अपॉन दैट इंफॉर्मेशन वी आर, अगर हम लोग उस इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होगी तो हम लोग उसको रिट्रीव करके किसी और को सेंड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अवेलेबिलिटी ना हो, बिकॉज जब तक, जैसे तुम लोग, जब तक तुम्हें नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तुम लोग नहीं पढ़ सकते, इसलिए हर टाइम तुम्हें अवेलेबिलिटी चाहिए। क्लियर? एनीवन एल्स? अगर सबको समझ आ गया दैट्स गुड, बट इसको ना इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे हम लोग, जहाँ पे नहीं समझ आता बार बार रिपीट करता हूँ मैं, सेम टाइम पे अनम्यूट पे ही रखा हुआ है सभी को मैंने, अनम्यूट करके अपने माइक को क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो थोड़ा मेरे को भी क्लियर हो जाता है कि चलो बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, तो CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट्स गुड। वेट, ओके, डन। सो वी मूव फर्दर नाउ, अब डिटेल में आ जाएंगी ये सारी। गुड। द फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, अब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। व्हेन वी talk about the confidentiality of the information, we are talking about protecting the information from being exposed to an unauthorized party due to a data breach or inside threat. कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है, जब भी हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट एक्सपोज टू अनऑथराइज्ड पार्टी। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज, अगर तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जो भी करते हैं, और जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट देते हैं तो हम लोग अपने कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके बाद अब कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है 16 डिजिट का, उसके बाद उसका मंथ एक्सपायरी डालते हैं, CVV नंबर डालते हैं और ATM पिन डालते हैं। अब इट इज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ना, मेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ये। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी इनमें होती है, होता क्या है, मैंने जो ऐड किया है वो डायरेक्टली बैंक के साथ मैच होता है, थर्ड पार्टी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं जाती। कभी भी तुम लोगों ने ऑनलाइन पे किया हो तो वहां पे लिखा जाता है सिक्योर, सिक्योर्ड बाय पेपॉल या सिक्योर्ड बाय एन XYZ पार्टी, नेम लिखा होता है वहां पे। सिक्योर्ड मींस वो कॉन्फिडेंशियल रहती है इंफॉर्मेशन बिटवीन मी एंड माय बैंक, वो किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सपोज नहीं होते कि इसका कार्ड नंबर क्या था, उसका CVV क्या था, या इसने जो पिन ऐड किया वो पिन कौन सी थी। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी। द इंफॉर्मेशन शुड रिमेन द कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैंने सेंड किया, रिसीवर कौन, मेरा बैंक हो गया, बैंक को पता है या मेरे को पता है, किसी और को पता ना लगे। क्लियर? nobody nobody wants to deal with the fallout of a data breach। data breach का मतलब है डेटा लीक हो जाना, which is why you should take major steps to implement document security, establishing security controls for sensitive files, and establish clear information security policies regarding devices। कहता कोई भी नहीं चाहता कि डेटा ब्रेच हो in any organization, nobody wants data breach। suppose I am want to send some data to someone, हैकर्स का कंसेप्ट सुना होगा तुम लोगों ने। अब उसमें होता क्या है, हम लोग बेसिक में क्या करूंगा, अगर मेरे को डर होगा कि ये कोई और भी इसको यूज कर सकता है या कोई और भी इसको देख सकता है, एक्सपोज हो सकती है, आई जस्ट मेक अ पासवर्ड ऑन दैट फाइल, मेक अ पासवर्ड ऑन दैट फाइल एंड सेंड टू यू। अब तुम्हें क्या है, अब जिसको भी वो फाइल मिलेगी फर्स्ट दे वांट अ पासवर्ड, बट पासवर्ड तुम्हें मैं मैसेज कर दूंगा। व्हाट इट मींस, नाउ यू कैन अप्लाई दैट पासवर्ड ऑन द पर्टिकुलर फाइल एंड यू कम टू नो कि उस फाइल में लिखा क्या हुआ है। otherwise nobody can see the material or the data that is available in the market or that is available in that particular message। Clear? Confidentiality covers a spectrum of access control and measures that protect your information from getting misused by an unauthorized access। Unauthorized ये concept clear होना चाहिए पहले तुम्हें। Authorized वो जो पार्ट है हमारे सिस्टम का, दे आर द ऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड वो जिसको हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ, जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। हैकर्स क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग सुनते रहते हैं हैकर्स ने इस बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए, हैकर्स ने क्या किया, इन वेबसाइट्स को हैक करके यहाँ पे ये मैसेजेस कर दिए या ये चेंज कर दिया। तो व्हाट इट मीन्स, मेरा बैंक है, कॉन्फिडेंशियलिटी किस में चाहिए, मेरे में और मेरे बैंक में। बट जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं ना,
तो हैकर्स यही चीज़ ट्राई करते रहते हैं, वो कैसे हमारे नेटवर्क में एंटर हों और मेरे वाली इन्फॉर्मेशन को फेच कर लें। कौन सी इन्फॉर्मेशन? मेरे कार्ड का नंबर, मेरा सीवीवी और वो। जैसे तुम सभी के पास एटीएम कार्ड्स होंगे, यू ऑल हैव योर एटीएम कार्ड्स, और उस पे यूनिक नंबर्स आर देयर, यूनिक सीवीवी नंबर्स आर देयर। विदाउट दैट हम लोग कोई भी कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। तो हैकर्स क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो एंटर करके इन चीज़ों को रिट्रीव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए वे रिक्वायर्ड सम सिक्योरिटी मेजर्स। तो हम लोग अपनी तरफ से वो सिक्योरिटी मेजर्स को ऐड करते हैं, जिनको तुम लोग सेफ गार्ड्स भी बोल सकते हो, ताकि डेटा ब्रेच ना हो। वी ऐड द सेफ गार्ड्स। क्लियर? Every piece of information a company holds the value, especially in today's world. Whether it's financial data, credit card number, trade secrets, legal documents, everything requires proper confidentiality. कोई भी डेटा है ये सारा कॉन्फिडेंशियल है. In other words, only the people who are authorized to do so should be able to gain access to the sensitive data. अब इस डेटा का एक्सेस किसके पास होगा? जो ऑथराइज्ड है. द वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज देयर. सपोज वी ऑल हैव अ सेल फोन्स. फोन नंबर होता है ना हमारा. दिस इज अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, है ना. हम लोग हर किसी को अपना फोन नंबर तो नहीं बांटते, या कहीं लिख के तो नहीं छोड़ देते ये मेरा फोन नंबर है. हम लोग किसको फोन नंबर देते हैं? अपना सेल नंबर किसको दे रहे हैं? जो ऑथराइज्ड है, जिनको मैं जानता हूं. अच्छा, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा कजन है, ये मेरा फ्रेंड है, तो इसको मैं ये नंबर शेयर कर सकता हूं. वो सेंसिटिव डेटा है मेरे लिए. तो वो हम लोग किसको देंगे? जो ऑथराइज्ड है. अनऑथराइज्ड का मतलब है जिनको हम लोग नहीं जानते, हम लोग अपना सेलफोन उनके साथ शेयर नहीं करते. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. क्लियर? A failure to maintain confidentiality means that someone who should not have access has managed to get the access to the private information. कि अनऑथराइज्ड ने क्या किया? फेलियर का मतलब है अगर कॉन्फिडेंशियलिटी में फेलियर हो गया तो वो डेटा अनऑथराइज्ड वाले पर्सन भी पढ़ सकते हैं. कोई भी वो डेटा को पढ़ सकता है, रिट्रीव कर सकता है थ्रू इंटेंशनली बिहेवियर बाय और एक्सीडेंटली, या इंटेंशनली जानबूझ के किया, या एक्सीडेंटली वो एक्सपोज हो गया डेटा. अ फेलियर इन द कॉन्फिडेंशियलिटी कैन कॉज सम सीरियस डेविएशंस. अब कॉन्फिडेंशियल डेटा था, बट दिस डेटा इज एक्सपोज्ड बाय समवन, तो होगा क्या? वो कॉन्फिडेंशियल तो नहीं रहा ना. दैट पर्टिकुलर डेटा इज अवेलेबल फॉर समवन एल्स आल्सो. क्लियर? Some information security basics to keep your data confidential are, kada we have the number of options are there. With the help of these safeguards we can make the data we can make the data confidential. First, encryption. क्रिप्टोग्राफी पढ़ा होगा तुम लोगों ने ग्रेजुएशन में, वैसे बताता हूँ. इनक्रिप्शन का मतलब है हम लोग वी मेक सम फॉर्मूलाज ऑन अवर डेटा, वी कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट. जैसे अगर व्हाट्सअप यूज करते हो सब लोग, वहां पे तुम लोगों ने लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा होता है वहां पे. एंड टू एंड इनक्रिप्शन व्हाट इट मींस, तुम लोग जो भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे सेंड करते हो ना, हम लोग सेंड करते हैं हेलो हाउ आर यू, वो प्लेन मैसेज था. जब सेंड पे क्लिक कर देते हो ना, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप क्या करता है? उसको इनक्रिप्ट कर देता है. वो नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. कब तक? जब तक रिसीवर के सेलफोन पे नहीं जाएगा. दैट्स वाई लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन. क्लियर? सेकंड, पासवर्ड. इट इज अ सिंपल वन. वी ऑल मेक सम पासवर्ड्स. अपने फोन पे पासवर्ड लगाया तुमने? बिकॉज कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है हमारा फोन पे. मेरा अपना पर्सनल डेटा होगा मेरे फोन पे, तो तुम सभी ने पासवर्ड लगाए होंगे. वो पासवर्ड किसको पता होगा? जिसको तुम चाहोगे उसको बता सकते हो. ऑथराइज्ड है जो, उसको बता दोगे, अदरवाइज पासवर्ड से तुम्हें पता होता है. क्लियर? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मींस किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करना कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं. टू फैक्टर मींस टू वे ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं हम लोग. दो पैरामीटर्स लगा दिए, पहला पासवर्ड लगा दिया, दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा दिया. या पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा दिया, दूसरा पासवर्ड लगा दिया. अब तुम्हें सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बताना चाहिए, उसका आंसर दोगे, उसके बाद पासवर्ड ऐड करोगे, तो क्लिक करोगे तो लॉग इन कर देगा तुम्हें. ये होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. क्लियर? लास्ट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. वो जो फिंगर सेंसर है सबके फोन्स पे, है ना. कईयों के फोन्स पे होगा, हम लोगों ने अप्लाई किया है. कईयों ने वो फेशियल लगाया होता है बायोमेट्रिक पे. वो फेस के आगे सेलफोन करते हो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, या सेंसर पे क्लिक करते हो. अब उसमें क्या है, तुम्हारे किसी के सेलफोन पे मैं अपनी फिंगर सेंसर पे लगाऊंगा तो चल पड़ेगा? नहीं. या मेरे फोन पे तुम लगाओगे चल पड़ेगा? नहीं. क्यों? बिकॉज ऑथराइज्ड पर्सन को ही वो डेटा मिलता है. ऑथराइज्ड क्या है? मैंने अपनी दो फिंगर्स को वहां पे ऐड किया हुआ है. 10 फिंगर्स ऐड कर सकते हैं, वहां पे लिखा आता है ना. किसी और की फिंगर भी वहां पे ऐड कर दोगे, वो भी तुम्हारे फोन को ओपन कर लेगा. सो व्हाट इट मींस,
कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो हमारा मैसेज है, जो डेटा है, वो कॉन्फिडेंशियल रहे, सिर्फ उसको अवेलेबल हो जो सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर हम हो गए, रिसीवर वो हो गए जिसको हम लोग सेंड कर रहे हैं। क्लियर? एंड वी हैव द नंबर ऑफ ऑप्शंस, वी हैव द नंबर ऑफ सेफगार्ड्स टू अप्लाई द कॉन्फिडेंशियलिटी। और वो कौन से थे? इंक्रिप्शन, पासवर्ड, टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, इंटेग्रिटी। In the world of information security, integrity refers to the accuracy and the completeness of data. Accuracy मतलब accurate data. If I send A, B, C, you also receive A, B, and C. This is called accuracy. And completeness. Completeness means if I send three words A, B, and C, you also receive the three words. What it means? जो मैसेज मैंने सेंड किया, सेम मैसेज कैन बी रिसीव्ड बाय योरसेल्फ। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। मैंने कुछ सेंड किया, हैकर ने उसको चेंज करके तुम्हें सेंड कर दिया, तो वो इंटेग्रिटी नहीं रही। क्लियर? Security controls focused on integrity are designed to prevent data from being modified or misused by unauthorized party. क्या हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल्स इसी तरह से इंटेग्रिटी करते हैं कि हमारे वाला जो डेटा है वो मॉडिफाई ना हो सके और मिस यूज ना हो सके अनऑथराइज्ड पार्टी के साथ। अनऑथराइज्ड मींस जिसको ऑथराइज्ड नहीं है, जिसको हमने सेंड नहीं किया था। क्लियर? इंटेग्रिटी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। एंटायर लाइफ साइकिल का मतलब है जब मैंने वो डेटा सेंड किया और जब तुम्हें वो डेटा मिला, थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल, एंटायर लाइफ साइकिल। थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड, जितने टाइम डेटा ऑन द एयर रहा, हवा में रहा, जितने देर टाइम डेटा, वो सिक्योर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। ये तो सबको पता होगा, जो भी डेटा सेंड करते हो, दे कैन इट कैन सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। जैसे सेल फोन से अभी मैसेज कर रहा हूँ, तुम्हें अभी ग्रुप में मैंने मैसेज किया, तो तुम्हारे ग्रुप पे चला गया, तुम्हारे सेल फोन्स पे पहुंच गया, वो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। इफ समवन हैविंग सम डिफरेंट स्किल्स, तो वो उन पैकेट्स को रिट्रीव कर सकते हैं ऑन द एयर ही। ऑन द एयर मीन्स जब तक वो रिसीवर साइड पे नहीं पहुंचा, और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो हैकर्स नॉर्मली करते हैं। वो कहते हैं ना, इनकी चैट रिलीव्स हो गई, इनकी वो मेल्स जो है वो रिलीव हो गई। कैसे हो गई? वो हैकर्स यही काम करते हैं। क्लियर? Data must not be changed in the transit, and precautionary steps must be taken to ensure that the data cannot be altered by unauthorized people. Alter means alterations कोई ना हो जाए, उसमें changes ना हो जाए। For example, in a data breach that compromises integrity, a hacker may seize data and modify it before sending it to the intended recipient. वही जो तुम लोगों को अभी बता रहा था, अगर हैकर उसको एंटर कर गया, उसमें डेटा ब्रेच कर गया हैकर, तो होगा क्या? जो मैंने डेटा सेंड किया, इन बिटवीन द पाथ हैकर उसको चेंज कर लेगा, वो सारे को कन्वर्ट करके इंटेंडेड यूजर पे भेज देगा। इंटेंडेड यूजर मींस जिसने एक्चुअल में रिसीव करना था। मैंने भेजा एमसीए सेकंड सेमेस्टर को, मैंने डेटा कुछ भेजा, इन बिटवीन द पाथ किसी ने वो डेटा फेच कर लिया, फेच करके चेंज कर दिया, चेंज करके तुम लोगों को भेज दिया, तो वो क्या हो गई? तो इंटेग्रिटी नहीं रही वहां पे। बिकॉज जिस फॉर्म में, जिस पर्टिकुलर फॉर्म में मैंने तुम्हें डेटा सेंड किया था, तुम लोग उस फॉर्म में रिसीव नहीं कर रहे डेटा को। क्लियर? some security controls designed to maintain the integrity of the information. Now we have some different safeguards, or you can say the security controls जो मेंटेन करते हैं इंटेग्रिटी को, या इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उनको अप्लाई करते हैं। इंक्रिप्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, इंक्रिप्शन सबको पता ही है। यूजर असेस कंट्रोल, तो हम लोग एक्सेस लगा देते हैं कि कौन कौन सा यूजर को कौन कौन सा एक्सेस है हमारे वाले डेटा में। डीबीएमएस में भी पढ़ोगे ना, रीड, रीड ओनली, रीड राइट, मॉडिफाइड। थर्ड, वर्जन कंट्रोल, हम लोग पर्टिकुलर वर्जन कंट्रोल करते हैं। वर्जन का मतलब होता है कौन सा पर्टिकुलर वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं उस डेटा को सेंड करने के लिए, एंड दैट डेटा कैन बी अवेलेबल टू एनीवन अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ दैट जो भी हम लोग मैसेज में सेंड करेंगे। क्लियर? बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, हम लोग बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर लगा देते हैं। अगर हमारा डेटा लॉस हो जाएगा तो हम लोग उसका बैकअप, या तो उसका बैकअप पहले से रख लेते हैं, या उसको रिकवर करना है तो कौन कौन से डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। कौन से डेटा को? जो एक्चुअल में मैंने सेंड किया था। हो सकता है तुम्हें किसी ने मॉडिफाई करके और सेंड कर दिया हो, बट जो मैंने सेंड किया था, एक तो उसका बैकअप रख लूंगा, दूसरा वो रिकवर कर लूंगा।
and recovered data also be shared by the receiver also. Clear? Last, error detection software. एरर डिटेक्शन का मतलब है नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर जो हम लोग अप्लाई कर देते हैं डेटा पे। वो क्या करते हैं कि जिस फॉर्म में मैंने डेटा सेंड किया, तुम लोगों को पता अभी बताया मैंने, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा जाता है और किस फॉर्म में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। पढ़ा होगा तुम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में, 0 1 की फॉर्म में जाता है। तो जिस फॉर्म में मैंने सेंड किया, रिसीवर साइड पे जाके वो सॉफ्टवेयर फिर वो सारी फॉर्म को चेक करता है। इफ सम एरर इज डिटेक्टेड ओवर देयर, व्हाट इट मींस, some modifications can be occur over there. Clear? This is called the integrity. The last is the availability. Data availability means that information is accessible to the authorized user. It provides an assurance that your system and data can be accessed by the authenticated users whenever they are needed. Similar to the confidentiality and integrity, availability also hold the greater value. Now, what it means, availability means the data is available for the authorized persons 24/7. Authorized means जो authorized होंगे, suppose we are the authorized one, unauthorized को नहीं, authorized persons के लिए वो data every time available होना चाहिए. For example, 24/7. Anytime, whenever you require data, you can log into the system and data is available to you. Clear? Availability is typically associated with the reliability and the system uptime, which can be impacted by the non-malicious issues like the hardware failure, unscheduled software downtime, and human error, or malicious issues like cyber attacks and insider threats. कहता अवेलेबिलिटी में कब प्रॉब्लम आ सकती है? अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाए। तुम लोगों ने हाँ देखा होगा कि जैसे रिजल्ट्स पहले आते थे, ऑनलाइन आते थे ना, तो हम लोग अपना रिजल्ट चेक करते थे किसी वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। अब वेबसाइट ही क्रैश हो गई है तो डेटा अवेलेबल होगा ही नहीं। वो क्या हो गया, वेबसाइट क्रैश कर गई। सेकंड, हार्डवेयर फेलियर होगा, जहां पे सर्वर लगा हुआ था सर्वर फेल हो गया। सर्वर फेल हो गया तो सर्वर अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी। ह्यूमन एरर, हमसे कोई गलती हो गई तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही। साइबर अटैक्स, हैकर ने कोई अटैक कर दिया वहां पे, आगे जाके पढ़ोगे DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, वो आगे जाके आएगा समझाऊंगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक वैसे बताता हूँ। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या है, सर्विसेज को डिनाइल कर देते हैं। वो डिनाइल मतलब भेजते ही नहीं है, वो सर्वर की सर्विसेज को बंद कर दिया, तुम लोग डेटा फेच कर रहे हो, डेटा आ ही नहीं रहा। तो कहता दीज आर द इश्यूज जिनके थ्रू अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। क्लियर? इफ द नेटवर्क गोज डाउन अनएक्सपेक्टेडली, नेटवर्क डाउन हो गया, यूजर विल नॉट बी एबल टू असेस द एसेंशियल डेटा एंड एप्लीकेशंस। जैसे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप और वो इंस्टाग्राम बंद हो गए थे 5 5 मिनट के लिए, तो उस पर क्या था, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं जा रहा था ना आ रहा था, इंस्टा पे कोई अपडेट्स नहीं आ रही थी। सेम विद द डेटाबेस, अगर वही डाउन हो गया, हमारा नेटवर्क डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली जहां से डेटा को फेच करेंगे, रिट्रीव करेंगे, तो हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? Information security policies and security controls address availability concerns by putting various backups. अब वो क्या करते हैं, ये मेन है, अब वो क्या करते हैं, इनका बैकअप्स ले लेते हैं। अगर यहाँ पे बंद हो जाए तो किसी और सिस्टम को बना दिया। जैसे वो मास्टर स्लेव पढ़ा था तुम लोगों ने, उस मास्टर स्लेव में क्या होता था, हम लोग 5 सिस्टम उनमें से एक को मास्टर बना देते थे, मास्टर सारी रिक्वेस्ट को सेंड करता था। अगर एक सिस्टम मास्टर सिस्टम बंद हो गया, ऑटोमेटिकली जो बाकी 4 स्लेव सिस्टम है उनमें से एक मास्टर सिस्टम बन जाएगा, काम नहीं बंद होगा, तो वो क्या बैकअप हो गया। क्लियर? बैकअप्स एंड रिडंडेंसीज इन प्लेस टू इंश्योर कंटिन्यूअस अप टाइम एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। कहता हम लोग बैकअप और रिडंडेंसीज लगा देते हैं। रिडंडेंसीज मींस, एक एग्जांपल बताता हूं, डेटाबेस है, हम सारे उस डेटाबेस में से डेटा को फेच करते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस बना दिया। सपोज वो सिस्टम हॉल्ट कर गया या सिस्टम डाउन हो गया, सेंट्रलाइज्ड था तो बैकअप बनाया हुआ था एक और सिस्टम हम लोगों ने, जब वो सिस्टम बंद होगा तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सिस्टम के ऊपर। उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी बंद नहीं होगी। नॉर्मली अगर एक सिस्टम है, सर्वर है, तुम उसमें से डेटा फेच कर रहे हो, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया तो डेटा नहीं आ रहा, वहां पे एरर शो करना शुरू कर देगा, वो डेटा नहीं आ रहा, तो उसमें क्या होगा, वी हैव टू वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। बट अवेलेबिलिटी में तो यही होता है कि भाई हर टाइम अवेलेबल हो। तो उसको ओवरकम कैसे करते हैं, we make another system, we make a backup system. Whenever a main system is stops, automatically the backup system become the main system, और वो execute करना start कर देता है, through which availability is also there. Clear? This is all about the availability.
Okay, this is all about the computer security concepts. थर्ड टॉपिक इज ओवर. थर्ड टॉपिक में क्या था? कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स में था कि वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम्स, वी आर सेंडिंग सम डेटा, वी आर रिसीविंग सम डेटा ऑन द इंटरनेट, वी रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स. द सिक्योरिटी कंसर्न्स आर देयर. वो तीन चीजें क्या थी? कॉन्फिडेंशियलिटी. रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब था जिस यूजर को मैंने डेटा सेंड किया सिर्फ उसी को यूज हो, उसी को जाके मिले, एक्सपोज्ड अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सपोज ना कर सके. अगर किसी और को वो चीज लग गई पता, तो वो तो सबके लिए कॉमन हो गई, कॉन्फिडेंशियल नहीं रही. सेकंड, इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी में क्या था? एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस. कि जिस डेटा को मैंने सेंड किया है, सपोज इफ आई सेंड ए बी एंड सी, आई सेंड द थ्री वर्ड्स, तो तीन के तीन वर्ड्स ही तुम लोग रिसीव करो. ये हो गया कंप्लीटनेस. तीन वर्ड मैंने सेंड किया, तुमने तीन वर्ड रिसीव किए. बट एक्यूरेसी इज मैंने किया ए बी सी सेंड, तुम ए बी सी ही रिसीव करो. ऐसा ना तुम लोग ए बी और डी रिसीव कर लो. तो तीन तो वर्ड रिसीव किए बट वो मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड द इंटेग्रिटी. एंड द लास्ट वन इज द अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स जितने भी ऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल 24/7. उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए सिस्टम्स में, जहां से वो इंफॉर्मेशन को फेच करके आगे सेंड कर सकें. एंड अवेलेबिलिटी में क्या होता है? वी हैव सम इश्यूज. अवेलेबिलिटी, हार्डवेयर फेलियर हो गया, सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया. इन चीजों को ओवरकम करने के लिए वी यूज द बैकअप प्लान्स, ताकि जो अवेलेबिलिटी है वो 24/7 ही रहे. क्लियर? तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक अब मैं स्टार्ट नहीं कर रहा. टुडे वी डन विद द थ्री टॉपिक्स. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. बट स्टिल सेम क्वेश्चन इज सेम. एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और पूछ सकते हो. हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं जितना भी आज हम लोगों ने किया है. एनीवन फ्रॉम योर साइड? ओके, गुड. स्टिल फिर भी बाकियों के लिए भी आई जस्ट गिव यू द वन मोर मिनट. इफ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज देयर, अनम्यूट योरसेल्फ, वो पूछो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. नो इश्यूज. इफ एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स गुड. Okay, I think that everything is clear to everyone. That's good. And the last thing is, but still जब इसको go through करते हो तुम लोग, तुम्हें लगता है कि ये नहीं समझ आया, you can message me anytime or you can call me from 9 to 5, कॉलेज टाइमिंग्स जो है. क्लियर? और ये जो पीपीटी है ना, ये तुम लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, ताकि नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल हो अगर तुमने गो थ्रू करना हुआ तो. So this is all about the today's lecture. We're done with the three topics. What is information system, different types of information system, computer security concepts, and the components of information system. Clear? Okay, that's good. Okay. Okay. Thanks students for attending the today's class. Or ab the class is over and I'm going to end the class for everyone. Okay. Okay. ठीक है. I'm going to end the class. Thank you.